Hello everyone, I see Kanan Arora. Welcome you back to my YouTube channel, The Powerhouse Ideas. So finally, I think the wait you people were doing is finally over, and I am going to share with you the technical reasons of a stock, and I'll be giving you four detailed reasons with analysis that why I think that this stock is a very good buy at this time. But before starting the video and before revealing the name of the stock, I will request all of you that please don't consider this video as a tip video, as a advisory video. This is not a tip video. This is not an advisory video. This channel is not for advisors. If you're looking for any kind of tips or any kind of advices, then you're requested to kindly leave the channel, because this is just purely an educative YouTube channel, and we strive with a target, with an aim of making you independent. Because I have been into this markets from the last 5 years, and professionally I am a chartered accountant. So I want all of you to be independent, to be able to trade on your own and don't be dependent on anyone else. सो अगर आपको कुछ लर्निंग चाहिए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपको टिप्स चाहिए तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली पॉज द वीडियो, close the video, then unsubscribe this channel and don't visit this channel again, because I won't be providing any tips, so it will be a time waste for you and I respect your time. ठीक है, चलो अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जिसमें मैं आपको डिटेल्ड रीजंस बताऊंगा एंड आपको बताऊंगा कि मैं ये क्यों स्टॉक खरीदने वाला हूँ एंड कब खरीदने वाला हूँ. तो चलते हैं स्टॉक की तरफ. एनी गेसेस? इफ यू हैव एनी गेसेस यू कैन कमेंट in the comment section while pausing the video, but I'm just going to reveal the name. The name of the stock is naukri.com. जैसे आप सब लोग InfoEdge के नाम से जानते हैं, उसे नौकरी कहते हैं. जो हम नौकरियां अप्लाई करते हैं, there is a Naukri portal and many other businesses being handled by this company. There are some technical reasons which suggest that this stock can be a good buy with a good risk to reward ratio at this point of time. So let's start with the analysis and let's see what are the four reasons which seems that the stock might reverse from here. First of all, let us go to the weekly time frame. As you understand, on the weekly time frame, the stock has always been in an uptrend. This is very clear. This is check number one, which everyone should consider. But this is not reason number one. This is check number one. So you can see that this stock has been in an overall uptrend. लेकिन यहाँ पर इस जगह पे आके स्टॉक को इन जनवरी 2021, फरवरी 2021 ऑन अ वीकली चार्ट थोड़ी डिफिकल्टी हुई इस एरिया को क्रॉस करने की. दिस एरिया वाज समवेयर अराउंड 5500. देन अगेन आफ्टर 2-3 months in July or June, this stock again faced some difficulty in crossing this area, and then finally we had a breakout. After a breakout, the stock went up, created a high higher than the previous high, then came back for a pullback. Whenever the market moves this way only in the upside direction. So market ने यहाँ से breakout दिया, breakout देने के बाद वापस आई उस पर्टिकुलर एरिया पर जो एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था. Now this area has started working as a support. So this is the reason number one, that there was a breakout on weekly, then a retracement, and then a retest on week. Now how we can say that the retest seems to be successful? दोबारा देखते हैं. यहाँ पर एक की एरिया था जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था. जब मार्केट इस एरिया में वापस आया तो इसने एक पैटर्न बनाया. द नेम ऑफ द पैटर्न इज हैमर पैटर्न. ये आप सब लोगों को पता होगा. अगर नहीं पता तो मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज शुरू की है जिसके मैंने अभी तक 2 एपिसोड्स डाले हैं, एंड इन दैट सीरीज आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग अबाउट टेक्निकल एनालिसिस एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री. सो आप सब लोग उस सीरीज को ज़रूर देखें. उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है. जिस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के लिए आप अपनी हार्ड अर्न मनी स्पेंड करते हैं, दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू फॉर यू एब्सोल्युटली फ्री. सो आप वापस आते हैं एनालिसिस के ऊपर. इस की लेवल के ऊपर जहां पर मार्केट ऊपर की साइड नहीं जा पा रही थी, इस जगह पर एक हैमर पैटर्न बना. हैमर पैटर्न इफ यू नो इज अ रिवर्सल पैटर्न. रिवर्सल ऑफ व्हाट? रिवर्सल ऑफ अ डाउन ट्रेंड. ये मार्केट नीचे गिर रही थी. नीचे गिरने के बाद एक सपोर्ट के ऊपर, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज़्यादा फॉलो नहीं करता. आई अंडरस्टैंड की लेवल्स बिकॉज मैं लेफ्ट साइड को पहला ही लेवल देखता हूँ, दैट इज अ की लेवल फॉर मी.
उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक हैमर पैटर्न बना। हैमर पैटर्न कुछ इस तरह से बनता है जिसमें विक उसकी बहुत बड़ी होती है एंड बॉडी इज़ वेरी स्मॉल। उसके बाद बनी एक और कैंडल। इस कैंडल को आप जो मर्जी नाम दो, लेकिन ये कैंडल एक मोमेंटम कैंडल थी। व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम कैंडल? एक कैंडल जिसमें मिनिमम विक्स रहती हैं एंड बाकी बॉडी रहती है इज अ मोमेंटम कैंडल। इट कैन बी ग्रीन और इट कैन बी रेड। ग्रीन इज फॉर बुल्स, रेड इज फॉर बियर्स। आई होप एवरी वन ऑफ यू नो दैट। उसके बाद कुछ इनडिसीजन हमें देखने को मिल रहे हैं ऑन अ वीकली। सो पहला रीजन अभी तक हमने ये समझा कि मार्केट ने एक की लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था ऊपर की साइड एज अ रेजिस्टेंस, एज अ की लेवल, एंड अगेन दैट की लेवल इज बीइंग रिस्पेक्टेड एज अ सपोर्ट. सो दिस इज रीजन नंबर 1. Let us move to the next reason over here. For that we have to go to the daily time frame. मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म में दिस चार्ट हैज बीन इन एन अपट्रेंड, लेकिन यहां पर चार्ट ने कुछ इस तरह से मूवमेंट दे रहा था अभी. ठीक है, यहां पर एक चीज बहुत जरूरी है देखने वाली जो हमें यहां देखने को मिल रही है. आप देख सकते हो कि जब यहां चार्ट यहां से फॉल किया तो इट इमीडिएटली फॉल्ट, देन जब यहां से फॉल किया इट अगेन इमीडिएटली फॉल्ट, बट दिस टाइम आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑफ दैट की लेवल जो हमने वीकली पे आइडेंटिफाई किया, उसके बाद यहां पर एक कंसोलिडेशन चल रही है जो कि यहां पर और यहां पर हमें देखने को नहीं मिली. तो दिस जस्टिफाइज कि अगर स्टॉक को यहां से गिरना होगा तो उसको गिर जाना चाहिए था अभी तक, अंडरस्टैंडिंग द प्रीवियस हिस्ट्री, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं होता दिख रहा. ठीक है, सो दिस सिग्निफाइज कि जितना डाउन ट्रेंड था वो आ चुका है एंड यहाँ पे गिरने के बाद सिर्फ एक फाइट चल रही है. सो अ चेंज ऑफ पैटर्न्स, यहाँ पे जो प्राइस एक्शन था, यहाँ पर जो प्राइस एक्शन था वो हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिला. सो दिस इज द रीजन नंबर 2 फॉर मी, दैट एक कंसोलिडेशन होना शुरू हो गया, प्राइस में गिरावट नहीं देखने को मिली. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द रीजन नंबर 3, दैट इज मूविंग एवरेजेस. मैं आपको मूविंग एवरेजेस का भी कॉन्फिडेंस बताऊंगा. इसके लिए हम लगाते हैं 50 एंड 200 मूविंग एवरेज हमारी चार्ट के ऊपर. आप देख सकते हो बहुत क्लियरली जब ये चार्ट ने यहाँ से गिरना शुरू किया तो इसने अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, ब्रेक डाउन दे दिया. ठीक है, लेकिन ब्रेक डाउन देने के बाद चार्ट ने जल्दी से रिकवरी दिखाते हुए अब उसी एरिया के ऊपर अपनी सपोर्ट लेती दिख रही है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो वॉल्यूम यहाँ पे ड्राइड अप थी इस पर्टिकुलर इस रीजन के अंदर, वो वॉल्यूम हमें वापस आती दिख रही है. सो दिस इज रीजन नंबर 2, सॉरी रीजन नंबर 3, जो यहाँ पर हमें मूविंग एवरेजेस की सपोर्ट लेते दिख रहा है चार्ट, जो 200 डेज मूविंग एवरेज है. एंड 200 डेज मूविंग एवरेज इज अ वेरी सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेज. तो एक मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी दिख रही है हमें, एक वीकली सपोर्ट भी दिख रही है हमें जो इनिशियली हमने आइडेंटिफाई की, एंड हमें एक पैटर्न में डिफरेंस भी दिख रहा है. अब इस मूविंग एवरेज को देखते हैं हम वीकली पे, तो कुछ इंपॉर्टेंट निकल के आता है सामने. आप देख सकते हो कि वीकली पे ये वाला एरिया एक 50 मूविंग एवरेज को भी रिप्रेजेंट करता है. Earlier, when the chart came near to the 50 moving average, it had a great bounce. Over here also, it had a great bounce. And now again, we have seen some patterns on the same moving average which respected as a support multiple times in the past, that again it is working as a support. So this is reason number 3 related to moving averages. Now the last reason which I always consider is the volumes. ठीक है, चार्ट एक मेजर की लेवल पे है, मेजर की लेवल पे आने के बाद वो कुछ प्राइस एक्शन में चेंजेस बता रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वॉल्यूम भी आ रही है. सो दीज वर द 4 रीजंस विच आई थिंक आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड helps us to analyze whether we should buy this chart or not. Now the big question, whether I will be buying this stock right now, the answer is no. Let me explain you further and this bonus step which I was not supposed to give you, but चलो आपको समझाता हूं मैं कब इसको खरीदूंगा एंड उसके रीजंस के साथ. हमने देखा कि स्टॉक लगातार यहां से नीचे गिर रहा है, लगातार नीचे गिरने के बाद यहां पे कुछ कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रही है. इस कंसोलिडेशन में एक ऊपर का एरिया है जो स्टॉक नहीं तोड़ पा रहा. दिस एरिया इज हैविंग टू सिग्निफिकेंसेस है इसके. 1, द प्राइस एक्शन, इतने दिनों तक इसको नहीं तोड़ पाया. सेकेंड, द 50 मूविंग एवरेजेस.
ठीक है, तो मैं वेट करूंगा कि स्टॉक अपने इस एरिया का ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट में वॉल्यूम जरूर आए। उससे दो चीजें होंगी, वन इज द ब्रेकआउट, सेकेंड इज अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू हायर हाई। चार्ट ने के हाई बनाया था जिसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा, एक न्यू हायर हाई बनाएगा एंड दैट विल गिव मोमेंटम टू दिस चार्ट. So right now I'm very bullish, but yes, there is no sign of entry howsoever. There is no sign of entry. कोई भी चैनल, कोई भी फेसबुक ग्रुप अगर आपको ये कहता है कि इसको बाय करना चाहिए इन द एंटिसिपेशन ऑफ कैचिंग द बॉटम्स, then my dear friend, you are mistaken. Price action is the king and you need to follow that. पैसा कम कमा लेंगे लेकिन उसकी हम प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखेंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो मैंने आपको इंटायर रीजंस बताए इस स्टॉक को कंसिडर करने के लिए एज अ गुड अपॉर्चुनिटी. एंड वन बोनस थिंग, दिस स्टॉक इज ऑल्सो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी. ठीक है, सो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. आप अगर बिना सब्सक्राइब किए चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बिकॉज ऐसी वीडियोस बहुत आपको मिलने वाली हैं इस तरह की, और बहुत ही अलग तरह की एक एजुकेटिव वीडियोस आपको मिलने वाली हैं. एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बिकॉज ये वीडियो का बनाने का पर्पस आपकी एजुकेशन है, एंड उस वीडियो एजुकेशन के लिए, फ्री एजुकेशन के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है. आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.